Hey guys, welcome back. So today we will be starting with another interesting topic of economics, that is the law of demand. Before starting with this topic, if you haven't referred to my previous video, please do check it out because in that I have explained what is the meaning of demand. So let's get started. The law of demand is being given by a very profound economist in economics, that is Dr. Alfred Marshall. Now, this particular economist, Dr. Alfred Marshall, explains the law of demand by stating that the law of demand states that other factor being constant, that is ceteris paribus, price and quantity demanded of any commodity are inversely related to each other. When the price of the commodity rises, the demand for the commodity will fall. This was the statement given by Dr. Alfred Marshall for the law of demand. Don't worry about the technicalities, it's very simple to understand. Suppose कि कोई एक कमोडिटी है, ओके, जिसकी आप डिमांड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में सर अल्फ्रेड मार्शल इस बात पे फोकस करते हैं कि एक जो प्राइस है कमोडिटी का और उसके बेसिस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो डिपेंड करता है, और उन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम होगा तब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है ज़्यादा होगी। एंड वो ये भी कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट मीन्स व्हाट, जो भी अदर चीज़ें हैं जैसे कि प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। कोई भी अदर फैक्टर जो है उसका इंटरवेंशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगी। यहाँ पे डिमांड में जो भी चेंजेस आएंगे वो सिर्फ प्राइस के वजह से आएंगे। मीन्स प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा। So, what I just explained is given in the slides here. The first point says that consumer choice behavior will change when there is a change in the price of a commodity. Okay, and the second says other factors that affect the demand do not change. As I said, preference वगैरह में कोई भी changes नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा तभी कंज्यूमर जो है लो बाय करेगा हायर प्राइस पे एंड मोर बाय करेगा लोअर प्राइस पे। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि हमारा ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है कि कंज्यूमर प्राइस चेंज होने की वजह से कैसे बिहेव करेगा, प्राइस राइज होने की वजह से कैसे बिहेव करेगा। तो दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, ऑब्जर्व करते हैं हम एक कंज्यूमर के बिहेवियर को, एंड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन ओनली दिस पर्टिकुलर लॉ इज बेस्ड। So the last point says there is an inverse relationship between price and quantity demanded, which is seen here that when price is low, the quantity demanded is more. When the price is more, the quantity demanded is less. Now, this particular law of demand is also explained to you by a demand schedule and a demand curve. Let's see how it's done. So now here we have the demand schedule. This demand schedule is basically taken from a point of view of individual demand. ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को कंसिडर किया गया है, सिंगल पर्सन के डिमांड शेड्यूल को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं। द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ प्राइस एंड द सेकेंड कॉलम इज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस रुपीज़ में है, क्वांटिटी डिमांडेड लीटर पर मंथ के हिसाब से आपको दिया हुआ है। प्राइस के कॉलम में जैसे प्राइस 50 रुपीज़ है तो 2 क्वांटिटी या 2 लीटर्स डिमांड किए जा रहे हैं। देन व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 45, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3 liters. Then again when the price falls to rupees 40, quantity demanded increases from 3 to 5 liters. This subsequently goes on and on. एंड देयर फोर यू सी दैट जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, व्हेन इट रीच टू 25 rupees, so the quantity demanded increases to 9 liters, and then when it further falls to rupees 20, the quantity demanded again increases to 10.
This hereby shows that there is a inverse relation. As I already said, there is a inverse relation between price and quantity demanded. तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती चली गई. So now what we studied in the demand schedule, the same is depicted in the demand curve. और यहाँ पे जो है basically graphically represent किया गया है ताकि आप लोगों को और better understanding मिले. यहाँ पे आप देख सकते हो x axis पे हमने quantity demanded लिया है, y axis पे हमने price लिया है. जैसे जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो रहा है. हमारा प्राइस कैसे डिक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस में वो डाउनवर्ड्स आ रहा है, और जैसे जैसे हमारा प्राइस डाउनवर्ड्स आ रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इट इज गोइंग मोर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्स एक्सिस. Therefore we get a demand curve that is downward sloping, okay, from the left to right. It is a downward sloping demand curve from left to right, which thereby indicates as price decreases quantity demanded increases. I hope that the concept is clear what the demand curve is, how is the demand schedule, and how is the demand curve represented graphically. Now let's move on and see some assumptions of law of demand. अगर ये assumptions fulfill होंगे तो ही law of demand जो है work करेगा. If these assumptions are not fulfilled, then the law of demand is not going to work. So the first assumption says that no change in consumers income. This is very much important क्योंकि अगर consumer की income increase हो गई तो he will demand more at a higher price, and therefore our law will not operate because our law says that more should be demanded at a lesser price. Okay, then the second assumption is no change in price of relative goods. देखिए अगर substitute goods या relative goods के जो prices है वो कम हो जाएंगे तो जो है कंज्यूमर अपनी डिमांड को उन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए शिफ्ट कर देगा, और वो जो कमोडिटी बाय कर रहा है उसे बाय नहीं करेगा. तो रिलेटिव गुड्स के जो प्राइसेस है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देन इट सेज कि कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज इफ कंज्यूमर स्टार्ट्स टू डिसलाइक अ कमोडिटी वो उसे नहीं खरीदेगा इवन इफ द प्राइस इज लो. Okay, then the next assumption says no uncertainty about the फ्यूचर. देखिए अगर फ्यूचर में एक कंज्यूमर अज्यूम कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइजेस जो है फॉल होने वाले हैं या राइज होने वाले हैं, और उसके वजह से जो है वो अपने करंट डिमांड को होल्ड करता है या ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेता है ज़्यादा प्राइस में, तभी भी हमारा जो लॉ है वो ऑपरेट नहीं होगा. एंड दैट इज़ द रीज़न द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि अनसर्टनिटी नहीं होनी चाहिए अबाउट द फ्यूचर प्राइस. Then the next assumption says कि there should be no change in advertisement. Okay, देखिए advertisement अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कोई चीज़ का आने लगता है तो कंज्यूमर सोचता है कि एक बार हमें इस कमोडिटी को ट्राई करना चाहिए, तो वो जो अपनी एग्जिस्टिंग कमोडिटी का प्राइस कम भी होगा तो वो मोर उसे डिमांड नहीं करेगा. इसीलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए. नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट के पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने जो है टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो बेसिकली टू फुलफिल दैट इंक्रीज इन टैक्सेस कंज्यूमर को कहीं ना कहीं तो अपनी डिमांड को कर्टेल करना पड़ेगा, कम डिमांड करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर ही कैन नॉट डिमांड मोर इवन इफ द प्राइसेस आर लेस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स विच मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो है कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. हम ये अज्यूम करते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होगा तो डिमांड में डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो आई होप दैट द अजम्पशंस ऑफ द लॉ आर क्लियर. अब हम थोड़े से एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के वो भी देख लेते हैं. ओके, सो द फर्स्ट एक्सेप्शन हियर इज जिफिन गुड्स. अब जिफिन गुड्स का कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए कि मीट है और आपका पाव है. ओके, तो अगर इन केस जो है
पाव का प्राइस कम होता है फॉर सपोजिंगली ₹5 से वो ₹3 पे आ जाता है, तो आपके ₹2 सेव हुए मतलब प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर, हम अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड में, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पाव ही बाय करेगा क्योंकि उसके प्राइस डिक्रीज हो गए। लेकिन यहाँ पे जिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। जो ₹2 उन्होंने सेव किए हैं ना पाव से, वो एक सुपीरियर गुड मतलब जो मीट है उसको बाय करने में यूज़ करेंगे, उस जो सेव्ड अमाउंट है उसको। सो डिफेंस गुड इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ inferior quality commodity decreases, the saved money is used by a person to buy a superior quality good, that is a meat in our example. I hope the Giffen's good concept is clear. So यहाँ पे अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मोर क्वांटिटी डिमांड नहीं की जा रही है ऑफ द ब्रेड और द पाव, एंड सो इट इज़ द एक्सेप्शन टू द लॉ। ओके, सो द नेक्स्ट इज स्नॉब वैल्यू दैट वी हैव। एंड स्नॉब वैल्यू में क्या होता है, रिच कंज्यूमर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल डायमंड का जब प्राइस ज़्यादा है तो वो उसे बाय करेंगे बिकॉज इट शोज देयर स्टेटस सिंबल दैट ओ दे आर रिच कंज्यूमर्स। एट द सेम टाइम अगर वही डायमंड का प्राइस कम हो जाएगा ना, तब वो लोग बाय नहीं करते हैं। क्यों वो लोग बाय नहीं करते? बिकॉज दे थिंक दैट एवरी वन एल्स कैन अफोर्ड दिस। ओके, दैट इज द रीजन दे डू नॉट बाय इट। सो यहाँ पे भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका कंसेप्ट जो है वो वर्कआउट नहीं होता है। Then the next is price expectation. If the consumer is expecting कि फ्यूचर में जाके इस कमोडिटी का प्राइस जो है राइज होने वाला है, तो वो क्या करेगा, करंटली अगर प्राइस लो भी है तो वो लो ही डिमांड रखेगा। ओके, एंड देयरफॉर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। अगर कंज्यूमर कभी भी एक्सपेक्टेशन रखता है फ्यूचर में प्राइस राइज होने की या फॉल होने की, उसकी वजह से उसकी करंट डिमांड को इफेक्ट होगा। एंड देयरफॉर अगर प्राइस कम होगा तो भी वो कम डिमांड करेगा, और कभी कभी प्राइस अगर ज़्यादा है तो भी वो मोर डिमांड कर लेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके प्राइसेस जो है और ज़्यादा राइज होने वाले हैं। देयरफॉर यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता है। नाउ इमरजेंसी, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस एक्सेप्शन। देखिए, अगर कभी आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट अर्जेंटली है तो वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे वो कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है कि कम है। यू हैव अ रिक्वायरमेंट तो आप हायर प्राइस पे हाई अमाउंट भी बाय कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। देन द नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ फैशन। देखिए, कोई भी चीज़ फैशन में होगी तो उसका प्राइस ऑब्वियस है ज़्यादा होगा। और अगर कोई ऐसा फेटिश होता है किसी को कि अगर ज़्यादा भी प्राइस है तो भी मुझे चाहिए ही, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो फैशन में है वो कमोडिटी, उसका प्राइस ज़्यादा है, फिर भी वो मोर क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए फैशन के कंटेक्स्ट में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ऑपरेट नहीं होता, बिकॉज हायर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस। I hope the entire law of demand is very much clear to you guys. Now let us move on to the conclusion of the law of demand. The conclusion thereby says that law of demand is telling you what? That more is demanded at a higher price and less is demanded at a lower price. And therefore there is an inverse relationship between price and quantity demanded. I hope it is very much clear to you guys. Thank you so much for watching the video. Please do not forget to like, share and subscribe to our channel, The E Square Expertise.